Hello everyone. Today's topic of the video is the mole concept. This is the most important topic of the class 11th chapter 1, and the basic chapter, main part of the chapter starts with this topic only. So what is mole? या इन केमिस्ट्री अगर हमें किसी भी सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करना है, जैसे नॉर्मल लाइफ में जब हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करते हैं तो हम केजीज में मेजर करते हैं, ग्राम्स में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में जब भी हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करना होता है तो एक टर्म यूज होती है विच इज कॉल्ड मोल। तो समटाइम्स 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। सो हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स? किसी भी कंपाउंड के नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स आर नॉर्मल टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स को शो करने के लिए हम यूज करते हैं एन। ये एन लेटर से सिग्निफाई करता है एंड दैट इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर W इज द गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस एंड M इज द मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास इज द जो भी कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। नाउ इफ यू वांट टू नो हाउ कैन वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज द सम ऑफ एटॉमिक masses of all the atoms present in a molecule। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो जो एटम्स हैं उन सभी के एटॉमिक मासेस का जो सम होता है दैट इज कॉल्ड द molecular mass। For example, if we take example of H2SO4 that is sulfuric acid, तो sulfuric acid में there are 2 hydrogen atom, 1 sulfur atom and 4 oxygen atom। तो oxygen molecular mass of sulfuric acid will be सम ऑफ इंडिविजुअल मासेस। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सल्फर का एटॉमिक मास 32 होता है, तो 32 इंटू 1 एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो 4 इंटू 16 बिकॉज देर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो इट वुड बी 2 प्लस 32 प्लस 64 दैट इज इक्वल्स टू 98 ग्राम। Okay, so this is how we can calculate the molecular mass। So I think there is a question 1 in your NCERT textbooks जो कि आप practice कर सकते हो कि calculate the molar mass। molar mass and molecular mass is the same thing। There is a question number 1 in your NCERT textbook कि calculate the molar mass of the following। This is the question number 1 of NCERT textbook back exercise। So you have to calculate the molar mass of H2O, CO2 and CH4। I think now you will be able to calculate H2O का 2 into H plus 1 into O, that is 2 into 1 plus 1 into 16, 2 plus 16 that is 18 grams। Okay, CO2 there is only one carbon atom, 1 into C plus 2 into O that is 12, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है, तो इट विल बी 12 plus 32 that is equals to 44 grams। So in a similar way you can calculate the molecular mass of CH4, that comes to be 16 gram। Okay, so this is the question number 1 of your NCERT back exercise। Now I think you people are clear with what molar mass या molecular mass is। We were studying how to calculate the number of moles। So number of moles, as I told you earlier, number of moles are given mass upon molecular mass। For example, there is a question कि calculate the number of moles present in 4 grams of NaOH। Now
Given mass in this question is 4 gram. You are given 4 grams of NaOH. You have to calculate number of moles, and we know that number of moles is equals to given mass upon molecular mass. So molecular mass of NaOH is, there is one atom of sodium जिसका atomic mass 23 होता है, one atom of oxygen which has atomic mass equals to 16 and one atom of hydrogen जिसका atomic mass होता है 1. तो 23 plus 16 plus 1, it is nearly equals to 40 gram. The number of moles is given mass upon molecular mass. So given mass of NaOH, given mass of NaOH is, that is given in question is 4. Molar mass as we calculated is 40. So it is 1 by 10 or 0.1 mole. So that is how you can calculate the number of moles of a given compound by the formula given mass upon molecular mass. Okay, this is how we can calculate number of moles. Now this mole term is very related. Sorry, not very related, it's very important. Mole. So there is one more point that you need to know about the mole, that is 1 mole of every substance. It is a very important point. Contains same number of particles. That particles can be, वो कौन से पार्टिकल्स होंगे वो डिपेंड करता है कि आपने सब्सटेंस का फॉर्म क्या लिया है. कि अगर आपने सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में लिया है तो वो पार्टिकल्स एटम्स हो जाएंगे. अगर आपका सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. अगर आपका सब्सटेंस आयनिक फॉर्म में है तो वो पार्टिकल आयंस हो जाएंगे. So 1 mole of every substance contains same number of particles and this particle terms depends upon substance कि आपने substance को किस form में लिया है. One more time I will repeat कि अगर आपका substance atomic form में है तो वो particles will be atoms. अगर वो substance molecular form में है तो those particles will be molecules. और अगर वो substance ions की form में है तो those particles will be ions. तो 1 mole of every substance contains same number of particles, that is equals to Avogadro's number. Avogadro's number, whose value is 6.022 into 10 raised to power 23. This is a very important number. It is called Avogadro's number. So 1 mole of every substance contains same number of particles, that is equals to Avogadro's number, which is 6.022 into 10 raised to power 23. One more term is there as at STP. STP is the condition of standard temperature and pressure. STP stands for standard temperature and pressure. These are the specific condition. Standard temperature and pressure. Okay. Now, अब इसी पॉइंट को हम आगे लेकर चलते हैं कि if we talk about 1 mole of HCl, तो 1 mole of HCl contains 6 because HCl is in molecular form. 1 mole HCl is in molecular form. So 1 mole of HCl contains 6.022 into 10 raised to power 23 molecules of HCl. Okay. If we talk about 1 mole of gold, गोल्ड का सिंबल होता है AU. तो बिकॉज गोल्ड इज इन एटॉमिक फॉर्म, यहाँ पर प्योर गोल्ड है, कुछ और भी नहीं है, इट इज इन एलिमेंटल फॉर्म. तो 1 mole of gold contains 6.022 into 10 raised to power 23 atoms of gold because it is in elemental form and it is in molecular form. तो इतने molecules हैं, अगर हम और इसको आगे डिवाइड करें तो it will have 6.022 into 10 raised to power 23 H atoms plus 6.022 into 10 raised to power 23 Cl atoms, अगर इसको आप एटॉमिक फॉर्म में चेंज करते हो तो. ओके. इफ वी टॉक अबाउट 1 mole of NaCl,
तो इट विल कंटेन 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl. इतने मॉलिक्यूल्स होंगे बिकॉज NaCl इज आयनिक कंपाउंड, ये भी मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl. But when NaCl dissociate, it will dissociate as Na positive and Cl negative. तो if अगर आपने इसका 1 मोल लिया है तो you will get 1 mole of Na positive and 1 mole of Cl negative. Okay, so it is 6.022 into 10⁻23 molecules because 1 mole था, तो इसका भी 1 मोल है, तो 6.022 into 10⁻23 ions of sodium positive, Na positive ion, and 6.022 into 10⁻23 Cl negative ions. So this is the ionic form. So that was what I was trying to tell you कि जिस टाइप का पार्टिकल आप सेलेक्ट करोगे, जिस टाइप का सब्सटेंस आप सेलेक्ट करोगे, उसी टाइप्स के पार्टिकल्स आपको मिलेंगे. ओके, आई थिंक नाउ इट विल बी क्लियर टू यू कि व्हाट आई वाज सेइंग. Okay, next important terms, think about mole. Okay, mass of 1 mole of a substance is always equals to its molecular mass. किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास कितना होता है, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होता है या मोलर मास होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 मोल ऑफ HCl की बात करते हैं तो उसका मास कितना होगा, जितना HCl का मॉलिक्यूलर मास है. HCl का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1, क्लोरीन का 35.5, तो HCl का मॉलिक्यूलर मास हो गया 36.5 ग्राम. तो 1 मोल ऑफ HCl का मास होगा 36.5 ग्राम. एंड 1 मोल ऑफ HCl में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 मोल ऑफ HCl विल हैव 6.022, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, into 10⁻23 molecules of HCl. तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl का मास कितना है, 36.5 ग्राम्स. ओके, 1 मोल ऑफ HCl का मास कितना है, 36.5 ग्राम्स. और 1 मोल ऑफ HCl में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स. तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl का मास कितना है, 36.5 ग्राम. तो यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl. Mass of 1 molecule of HCl will be 36.5 upon 6.022 into 10⁻23. Is that clear to you? समझ में आया कि कैसे मास और मोल टर्म्स आपस में रिलेटेड है? I think now it is clear to you. Now there is a question which is based on this concept in your NCERT. It is the question number 1.28. It is asking which one of the following will have the largest number of atoms. तो ऑप्शंस हैं आपके पास, 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, सेकंड 1 ग्राम ऑफ सोडियम, थर्ड 1 ग्राम ऑफ लिथियम, एंड फोर्थ 1 ग्राम ऑफ Cl2. सभी का 1 ग्राम मास उसने लिया हुआ है एंड यू हैव टू टेल विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स. तो एटम्स आर रिलेटेड टू, किसी भी सब्सटेंस में हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाल सकते हैं, दैट वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. तो अगर हम इन सभी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें तो वी कैन कैलकुलेट कि इन सब में कितने एटम्स होंगे बिकॉज दीज आर इन एटॉमिक फॉर्म. तो गोल्ड में का एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड इज 197.
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गोल्ड कितने हो जाएंगे, गिवन मास कितना है 1 अपॉन 197 मोल्स। अगर मैं निकालूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, 1/23। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम, दैट विल बी 1/7। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2, तो क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35.5, Cl2 में कितने एटम्स है, 2 एटम्स, तो उसका मास हो जाएगा 71। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे 1/71। अगर हम इन्हीं सभी टर्म्स को देखें तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स किस में आएंगे, लिथियम में। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके पार्टिकल्स भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने होते हैं, इन सभी के 1 मोल में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होंगे, हैंस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन थर्ड ऑप्शन, दैट इज द 1 ग्राम ऑफ लिथियम। तो यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं निकालना है, सिर्फ यहीं से देखकर आपको पता चल सकता है कि विच विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ओके, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू यू। Is it clear? Okay, now I will give you 1 or 2 examples which are related to this concept, and 1 and 2 numericals to do for practice. Okay, let me open the book. There is a question. Calculate the mass of 1 into 10⁻23 molecules of methane. This is the question. You have to calculate the mass of 1 into 10⁻23 molecules of methane. तो what is the molecular formula of methane? मीथेन का molecular formula होता है CH4। molecular mass of methane क्या हो जाएगा? That is mass of carbon 12। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, तो it is near about 16 ग्राम। Okay, तो अब we know that 1 mole of methane will contain how many molecules? 6.022 into 10⁻23। और 1 मोल ऑफ मीथेन का मास कितना होगा, जितना इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो यू कैन से के 6 मीथेन मॉलिक्यूल्स का मास कितना है, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास है 16। तो 1 का कितना होगा, दैट इज 16/6.022 इंटू 10⁻23। और जितने मॉलिक्यूल्स का उसने पूछा है 1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, तो इट इज नियर अबाउट 16/6। 02 आप राउंड ऑफ करके निकाल सकते हो, तो यू विल गेट द आंसर। सो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। ओके, और क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इट कुड बी लाइक यस, the question could be like calculate the number of atoms of constituent element in 53 grams of Na2CO3। number of atoms of constituent elements it is asking। तो Na2CO3 के constituent elements कौन कौन से हैं, कि मतलब किन किन एलिमेंट से मिलकर ये बना है। तो Na2CO3 मिला है, सोडियम से मिलकर बना है, कार्बन से और ऑक्सीजन से। तो कितने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स प्रेजेंट है 53 ग्राम्स में। फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो Na2CO3 का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, पहले हम मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16, तो इट विल बी 46 प्लस 12 प्लस 48, तो 106 ग्राम।
दिस इज द मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास आपको कितना दिया है 53 ग्राम्स, मॉलिक्यूलर मास कितना है 106 ग्राम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 1/2, दैट इज 0.5। ओके, मोल्स। तो नंबर ऑफ molecules of Na2CO3 in 0.5 moles कितने होंगे? यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद अवोगाड्रोस नंबर, इतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो इट इज 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज इक्वल्स टू 3.011। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आए? 3.011 इंटू 10⁻23। नाउ यू हैव टू टेल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। What you have to tell? Constituent elements. तो Na2 one molecule of Na2CO3 में कितने सोडियम एटम्स है? 2। तो नंबर ऑफ सोडियम एटम्स इतने मॉलिक्यूल्स में कितना हो जाएगा? जितने मॉलिक्यूल्स है दैट मल्टीप्लाइड बाय 2। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होगा? क्योंकि कार्बन का 1 एटम है एक मॉलिक्यूल में तो सिमिलर रहेंगे। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या होगा? एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 3 एटम्स है, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स विल बी 3 इंटू 3.011 इंटू 10⁻23। So I think now this mole term is clear to you कि how mole is related to mass and how mole is related to number of molecules. I think now it is clear to you. This is all for the today's video. Okay, there are 1 or 2 questions that you can do for practice. Calculate the mass of 1 atom of silver. सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108 ग्राम्स। ओके, सेकेंड, 1 molecule of CO2. Okay, you have to calculate the mass. This is one question. Next question, calculate number of molecules present in 1 drop of water having mass 0.05 gram. Okay, so you have to calculate the number of molecules present in 1 drop of water having mass 0.05 gram. Okay, these are the questions that you have to do for the practice, and this is all for the today's video. If you have any doubt, you can leave in comment section. I will solve your query. Okay, thanks for today.